السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حسنین خان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا ساجد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے جام شوروں میں انڈس ہائی وے پر مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 7 افراد جہاں بحق ہو گئے ہیں اور 28 زخمی ہیں۔ ریسکیو کام کے مطابق 3 مسافروں کی حالت تشویشناک ہے، اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ ٹریفک حادثے میں جہاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے بعد کئی زخمی گاڑی میں پھنسے رہے، جنہیں بس کی باڈی کو کاٹ کر نکالا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری میں اوور ٹیکنگ کے دوران پیش آیا۔ دوسری جانب جامشورو تعلقہ اسپتال مانجنٹ میں طبی سہولیات کے فقدان نے محکمہ صحت جامشورو کی کارکردگی کی کلئی کھول دی۔ حادثے کے زخمی اسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے باعث تڑپتے رہے۔ زخمیوں کو فرش پر لٹا کر طبی امداد فراہم کی گئی۔ جامشورو میں انڈس ہائی وے پر مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم، 7 افراد جاں بحق جبکہ 28 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 3 مسافروں کی حالت تشویشناک ہے، اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے بعد کئی زخمی گاڑی میں پھنسے رہے، جنہیں بس کی باڈی کو کاٹ کر نکالا گیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری میں اوور ٹیکنگ کے دوران پیش آیا۔ اپڈیٹ کریں حادثے کے زخمی اسپتال میں سہولت نہ ہونے کے باعث تڑپتے رہے، زخمیوں کو فرش پر لٹا کر طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ جامشورو میں انڈس ہائی وے پر مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم، 7 افراد جاں بحق جبکہ 28 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق 3 مسافروں کی حالت تشویشناک ہے، اموات میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ حادثے کے بعد کئی زخمی گاڑی میں پھنسے رہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بلوچستان میں داخل، پاک ایران اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں موسلادھار بارش، تافتان، نوکنڈی، دلبدین میں طوفانی بارش جاری ہے۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ جمعرات تک ملک کے بالائی علاقوں میں پھیل سکتا ہے۔ آج رات سے جمعے تک کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی آج رات سے 21 اپریل تک بارش کی پیشگوئی، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ پی ڈی ایم اے نے اب تک کے نقصان کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ بارش کے دوران مختلف حادثات میں 32 اموات ہو چکی ہیں جبکہ 41 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کئی گھروں کا بھی نقصان پہنچا، رابطہ سڑکیں بھی بہہ گئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 4 روز کے دوران بارشوں سے تباہی، 32 اموات، 40 زخمی اور کئی گھروں کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 15 بچے، 12 مرد اور 5 خواتین شامل ہیں۔ مجموعی طور پر شدید بارشوں کے باعث 1370 مکانات کو نقصان پہنچا، 160 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے، 1210 کو جزوی نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حالیہ بارش میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کی مالی مدد کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کر دیے ہیں۔ پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ 29 مارچ سے اب تک مختلف اضلاع کی انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 81 ملین روپے جاری کیے جا چکے ہیں۔ بلوچستان کو بارش نے تباہی کی تصویر بنا دیا ہے۔ آسمانی بجلی گرنے سے 5 اور چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے، بڑی تعداد میں مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، فصلوں اور باغات کو بھی نقصان پہنچا، بعض شاہراہیں بند ہونے سے کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلوچستان میں بارش تھم گئی، بے رحم موجوں کے سامنے جو آیا بہہ گیا۔ وادی کوئٹہ سمیت بلوچستان میں بارش نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ صوبائی دارالحکومت میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو گیا، سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی، گھروں میں پانی داخل ہونے سے مکین پریشان ہو گئے۔ صوبے کے دیگر علاقوں میں کھڑی فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچا۔ کوئٹہ کو زیارت سے ملانے والی شاہراہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کے لیے بند، جبکہ کوئٹہ کو سندھ سے ملانے والی شاہراہ پر آمد و رفت معطل ہو گئی۔ آسمانی بجلی گرنے سے سوراب، ڈیرہ بگٹی اور لورالئی میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے، درجنوں مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ ساحلی علاقوں کی صورتحال بھی کچھ مختلف نہیں، کیچ اور گوادر میں گھروں کی چھتیں گر گئیں، 2 افراد جان سے گئے۔ لنڈی کوتل میں 3 روز مسلسل بارش کے بعد اب بارش تھم گئی ہے، بادل بھی چھٹ گئے ہیں، جبکہ بارش کے بعد کی صورتحال یہ ہے کہ چشمے زبردست آبشاروں میں تبدیل ہو گئے۔ خوبصورت مناظر کے حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز شہرمان شنواری سے۔ جی بالکل، لنڈی کوتل میں 3 روز مسلسل بارش کے بعد آج خوبصورت دھوپ نکل آئی ہے۔
जिससे लंडकोतल के मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती चश्मे और आबशार निकल आए हैं, जिससे आवाम खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस मौका पर मेरे साथ एक सयाह मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सबसे पहले बोल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। बारिशों की वजह से यहाँ पे पानी के चश्मे और ये जो आबशार है ये फिर निकल आए हैं और बहुत रौनक है। सियाह आ रहे हैं। पेशावर और चारसद्दा और दीगर इलाकों की जितनी भी सियाह है, मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो लंडकोतल पे आए। गारूबो से तकरीबन 15 किलोमीटर आगे लंडकोतल बाज़ार के करीब ये आबशार फिर से दोबारा हमारे सामने है। यहाँ पे आए और इस खूबसूरती से फ़ायदा उठाए। आपने इनकी बातें सुन ली। वो कह रहे थे कि इन आबशारों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से सयाह आएंगे, जिससे मकामी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो दूसरी तरफ पानी का ज़ख़ीरा भी ऊपर आएगा, जिससे लंडकोतल का दरीना मसला जो है पानी का। तफसीलात से आगे। मुत्तहदा अरब इमारात में तूफ़ानी बारिशें 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई। सड़कें डूब गईं। सबसे अहम शाहराह शेख ज़ायद के अहम हिस्से बंद करना पड़ गए। कई गाड़ियां तैरने लगीं। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा के सामने भी पानी जमा होने लगा। मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस में भी पानी दाखिल। शारजा की सड़कें भी नहरों में तब्दील हो गईं। बारिश का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। आज भी तालीमी इदारे, दफातर बंद रहेंगे। तलबा ऑनलाइन क्लासेस, मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की हिदायत। शदीद बारिश के बायस दुबई और शारजा से पाकिस्तान की 43 परवाज़ें मनसूब, मुतादिद ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई जाने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ अल एन एयरपोर्ट पर लैंडिंग। अमला 150 मुसाफिरों को बेयारो मददगार छोड़कर गायब। मुसाफिरों को टिकट रिफंड करने की हिदायत। मुतबादिल परवाज़ों के बारे में एयरलाइन अमला कुछ भी बताने से कासिर। मुसाफिर एयरपोर्ट पर महसूर। ओमान में भी सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 18 अमवात, 18 इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शो में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने पर जोर दिया। सिपह सलार ने सऊदी वफ़द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि सऊदी वफ़द का दौरा रिवायती बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। सऊदी वफ़द को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान और वफ़द के एजाज़ में शाइया दिया गया। वफाकी काबीना और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाइये में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वफ़द की आमद पर बेहद खुशी हुई। सऊदी वली अहद की जानिब से वफ़द पाकिस्तान भेजने पर शुक्रगुजार हूँ। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए अहम है। और अपडेट करें आपको इस हवाले से, आज की गुफ्तगू दोनों मुल्कों के दरमियान नए दौर का आगाज़ होगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने सऊदी अरब को कौमी एयरलाइन PIA और एयरपोर्ट की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश कर दी। सऊदी वफ़द को इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की निजकारी में भी जॉइंट वेंचर की पेशकश की गई। होटल्स के लिए ज़मीन CDA की होगी, जबकि सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। मटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट विमेन बैंक की भी ऑफ़र की गई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की बड़ी सरमायाकारी। पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हुए। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शरीक थे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने सऊदी अरब को PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी में जॉइंट वेंचर की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की तामीर की पेशकश भी की गई। होटल्स के लिए जमीन CDA की होगी, जबकि सरमायाकारी सऊदी हुकूमत करेगी। वफ्द को मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वुमेन बैंक की भी ऑफर की गई। इससे कबल सऊदी वफ्द ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकातें की और 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था, अपनी 35 साला सियासी जिंदगी में सऊदी अरब से इतना बड़ा और आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में नहीं देखा। खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़म का अयादा। शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि दौरा इंतहाई मुस्बत रहा। SIFC के प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली ब्रीफिंग इंतहाई मुतासर कुन थी।
سرمایہ کاری کے حوالے سے ہم سے جو ہو سکا کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بولے 25 لاکھ پاکستانی افرادی قوت کی میزبانی پر سعودی عرب کے شکر گزار ہیں۔ نئی پالیسی کے مطابق ہم مختلف شعبوں میں اسکلڈ لیبر باہر بھیجنا چاہتے ہیں۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدر ورلڈ بینک سے ملاقات میں 10 سال کے لیے رولنگ کنٹری فریم ورک پلان کی ضرورت پر اتفاق، عالمی بینک کے صدر کی معیشت کے استحکام اور ٹیکس بڑھانے کے پروگرامز کی حمایت۔ وزیر خزانہ کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات، رعایتی فائننسنگ اور مستقبل کے منصوبوں پر توجہ پر زور۔ سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور شراکت داری بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ محمد اورنگزیب نے G24 اجلاس میں بھی شرکت کی۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے علاقائی نائب صدر سے بھی ملے۔ پاکستان نے اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پیش رفت کی ہے۔ قرض کے بوجھ کو سنبھالنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی کامیابی کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے۔ پاکستان اور بھارت مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے تلاش کریں۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2024 جاری کر دی ہے۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کی پیشگوئی کر دی۔ اس سال معاشی شرح نمو 2%، اگلے سال 3.5% تک جانے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال مہنگائی 21% ہدف کے مقابلے میں 24.8% رہے گی۔ اگلے مالی سال مہنگائی 12.1% کی نمایاں کمی متوقع ہے۔ رواں سال بے روزگاری 8%، اگلے سال 7.5% رہنے کا امکان ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس سے مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا مہم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ الزامات کا مقصد فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنا ہے۔ ایسے عناصر کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق سخت کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے اس خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات، کور کمانڈرز نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ پروپیگنڈے کا مقصد عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش قرار، سخت کارروائی کا بھی بتا دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ شرکاء نے ملک میں امن کے لیے جانیں قربان کرنے والے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور شہریوں کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف نے کور کمانڈرز کو ہدایت کی دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ سے فعال نہ ہونے دیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔ مسلح افواج پاکستان سے دہشت گردی کے اس خطرے کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ شرکاء نے بشام میں چینی شہریوں پر بزدلانہ دہشت گردانہ حملے اور بلوچستان میں معصوم شہریوں کے بہیمانہ قتل کی مذمت کی۔ شرکاء کو بریف کیا گیا کہ کس طرح افغانستان سے سرگرم دہشت گرد گروہ علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ شرکاء کو بتایا گیا دہشت گرد گروہ پاکستان اور اس کے اقتصادی مفادات بالخصوص چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے خلاف پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ کانفرنس کے شرکاء نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی جارحیت پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر فریقین نے فوری طور پر کشیدگی کو کم نہ کیا تو ایک وسیع علاقائی تنازع جنم لے سکتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی کا کہنا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس کی ضرورت تھی۔ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پھیلانے کی سازش کو ناکام بنانا ضروری ہے۔ فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے تاکہ ملک کو خوشحالی کی طرف گامزن کیا جائے۔ لیکن داخلی سطح پہ جو سب سے امپورٹنٹ 3 چیلنجز کا احاطہ کیا گیا ہے، وہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیلنج جو ہے وہ انفارمیشن ڈومین میں ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو غلط فہمیاں اور نفرت پیدا کرنے کی سازش ہے اس کو ناکام بنانا بہت ضروری ہے۔ ہماری اکنامک چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں بھی اس بات کا، اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہماری قومی اور سیاسی اور قیادت اور سویلین اداروں کے ساتھ فوج بالکل ساتھ کھڑی ہے، اور تاکہ ملک کو، قوم کو خوشحالی کے سفر پہ گامزن کیا جائے۔ جس طرح ایک منظم قسم کی مہم چلائی جا رہی ہے افواج پاکستان کے خلاف، افواج اور قوم کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے، یہ وہ لوگ ہیں
जो अपने आप को कोई यूट्यूबर कहता है, वी लॉगर्स हैं, लेकिन सबका मकसद जो है वाज़ेह तौर पर यही है कि वो पाकिस्तान के अफवाज को बदनाम करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। जो लोग स्पेशली जो बाहर बैठे हुए हैं इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में हमें उन ममालिक के कवानीन के तहत वहाँ पे हमें उन पर केस कर देना चाहिए। जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं, पाकिस्तान के कवानीन के तहत मेरा ख्याल में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DGI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी है। पंजाब हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। फैज हमीद का फैसलाबाद धरना कमीशन को दिया जाने वाला बयान भी सामने आ गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2017 में हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी दी थी और मुआहदे पर दस्तखत इसलिए किए क्योंकि तहरीक लब्बैक वाले मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। उन्होंने धरना मुनज़्ज़म नहीं बल्कि ख़त्म कराया था, जबकि तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं था। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट, साबिक DGI फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। धरने के पीछे किसी इदारे के किरदार का सुराग नहीं मिला। साबिक वजीर आला पंजाब और साबिक DGIB ने धरने में किरदार से इनकार किया। हुकूमत ने मुजाहिरीन तक रसाई के लिए ISI की खिदमात हासिल की। वजीर आजम ने DGI फैज हमीद को मामला हल करने का मैंडेट दिया था। फैज हमीद ने बतौर DGI मुआहदे पर दस्तखत करना थे। उस वक्त के आर्मी चीफ और DGI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी। रिपोर्ट में कहा गया, पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। हुकूमती पॉलिसी की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने मार्च को इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। पंजाब हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कहा, हुकूमत ने 2017 में वजीर आजम की सरबराही में धरना खत्म करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। धरना मुनज़्ज़म नहीं, खत्म कराया था। तहरीक लब्बैक मुआहदे पर आर्मी चीफ का दस्तखत चाहती थी। मुआहदे पर दस्तखत की इजाजत ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की। माली मामलात की तहकीक करना हमारे मैंडेट में नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत, सज़ा मअतली की बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर दलाइल। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, साइफर की हिफाजत आज़म खान की जिम्मेदारी थी, आज़म खान पर चार्ज क्यों नहीं लगाया, अदालत का सवाल। आज़म खान को उल्टा सरकारी गवाह बना लिया गया। सलमान सफदर का जवाब, अदालत ने मजीद वक्त देने की प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप 1 माह के लिए दलाल देने का हुक्म देते हुए समाअत आज फिर होगी। सिंध की नई गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक MQM का है। डॉक्टर फारूक सत्तार का निजी TV से गुफ्तगू, कहा कि MQM के गवर्नर कामरान टिसोरी हैं। गवर्नर के लिए कामरान टिसोरी के सिवा MQM ने कोई और नाम नहीं दिया। सिंध में गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है, MQM का इससे ताल्लुक नहीं। खबर शामिल करेंगे, घोटकी में पुलिस की लापरवाही ने लड़की की जान ले ली। पसंद की शादी करने वाली लड़की की सफरा महर को कत्ल कर दिया गया। मीरपुर माथेरो पुलिस ने लड़की को अदालत के बजाय पंचायत के हवाले कर दिया था। लड़की को वीराने में ले जाकर गोली मारी गई। लड़की के कत्ल के बाद पुलिस को होश आया, कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंचायत के सरबराह का ताल्लुक बासर कबीले महर से है। कराची के इलाके गडाप में 14 साला बच्ची कर्तिका की लाश मिलने का मामला, वाक़े का मुकदमा गडाप थाने में बच्ची के अहल खाने की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमे में नामजद गौतम, भून और राज को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची की लाश उस्मान शाह मज़ार के करीब से मिली थी। अपडेट कर रहे हैं, और तालिब इल्म और दीगर मुल्जिमान ने इब्तिदाई बयान में कहा है कि घर वाले फ़ोन पर बात करने से मना करते थे। मकतूल ने खुदकुशी की। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रोटी और नान की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया, मगर तंदूर मालकान कीमतें कम करने से इनकारी हैं। नान भाइयों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया हमें सस्ता आटा फराहम करे तो हम भी नान रोटी सस्ती करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमती फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए इंतज़ामिया किस कदर कोशा है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद डार इस वक्त डेप्यूटी कमिश्नर गुजरावाला तारिक कुरैशी के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जिसमें 120 ग्राम नान की कीमत में 5 रुपये और 100 ग्राम रोटी की कीमत में भी 5 रुपये कमी की गई है। लेकिन गुजरांवाला के जो नान भाई हैं और तंदूर मालकान हैं वो फ़िलहाल इनकी कीमतों में कमी करने से इनकारी हैं। इस हवाले से हम आज
डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला तारिक कुरैशी साहब के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने कितनी टीमें इसके लिए बनाई हैं और क्या ऑपरेशन किया है। जी मुझे बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, उसमें नान और रोटी की कीमतों में वाज़ेह तौर गई है। तो गुजरांवाला में भी आपने नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन अभी मार्केट में जो है वो आवाम को सस्ती रोटी और नान नहीं मिल रहे, इसकी क्या वजह है सर? देखें, ये हमने कल रात को जो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पे ये एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें रोटी की कीमत 15 और नान की कीमत 20 मुकर्रर की गई। और इसकी रीज़न ये थी कि इस दफ़ा माशाल्लाह बड़ी बम्पर क्रॉप्स जो है वो आ रही हैं वीट की। तो वीट शॉर्टेज का जो इशू नहीं है, अब चूँकि सप्लाई ज़्यादा होगी तो वो नेचुरली उसकी प्राइसेस भी वीट की कम हुई। तो उसी के जो समरात हैं वो आवाम तक पहुंचाने के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये एक स्टेप था जिसको कि हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसको नोटिफाई कर दिया गया पंजाब भर में। गुजरांवाला में 15 रुपये और 20 रुपये जैसे कि आपने आगे बताया ये रेट हैं रोटी और नान के। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, चूँकि ये बिल्कुल अभी फ्रेश है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे 40 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स जो है वो गुजरांवाला और वज़ीराबाद दोनों जगहों पे सुबह से लेके इस वक्त तक एक्शंस ले रहे हैं। और जो भी ओवर प्राइसिंग कर रहा है उसको आगाही भी दे रहे हैं और जुर्माना भी किया जा रहा है साथ साथ। तो इंशाल्लाह ये जो है ये इसको हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे इन रेट्स को और गवर्नमेंट की इस डायरेक्शन को। जी बिल्कुल, हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर तारिक कुरैशी मौजूद थे। उनका ये कहना था कि हुकूमत पंजाब के हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए हमने 40 से ज़ायद मजिस्ट्रेट जो है उनकी ड्यूटी लगा रखी है। उन्होंने गुजरांवाला शहर और वज़ीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किया है। वहाँ पर जो ज़ायद प्राइसिंग कीमत वसूल कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया है और उनको जुर्माने भी किए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कराची हिजरत कॉलोनी में वाक़ स्कूल में जनरेटर का धुआं भर जाने से 3 बच्चे बेहोश और 22 की हालत खैर हो गए। पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने बर्बत कार्रवाई करते हुए तमाम बच्चों को बचा लिया। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने वाक़े का नोटिस लेते हुए स्कूल इंतज़ामिया पर 13 लाख रुपए से ज़ायद का जुर्माना आयद कर दिया, जबकि तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। तफसीलात खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि अमरीका ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाएगा। उम्मीद है अमरीका के इत्तेहादी और शराकतदार भी इस किस्म के इक़दाम करेंगे। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जैक सुलेवान कहते हैं कि ईरान पर पाबंदियों का मकसद उसकी अस्करी ताकत को महदूद करना है। पाबंदियों और दीगर इक़दाम से ईरान पर दबाव बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान हाउस बर्लिन में जर्मन मुसव्विर और किताब की लैंड पर केस ऑफ पाकिस्तान की नुमाइश के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। किताब में मुसव्विर की बनाई हुई पाकिस्तानी मशहूर इमारत की 21 तस्वीरें हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान हाउस बर्लिन में जर्मन मुसव्विरा ओटे एलिट्स की किताब लैंडमार्क्स ऑफ पाकिस्तान की नुमाइश। किताब में मुसव्विरा की बनाई हुई पाकिस्तानी मशहूर इमारत की 21 तस्वीर हैं। तकरीब में जर्मनी में पाकिस्तानी सफीर सकलैन सईदा ने कहा कि सकाफती रवाबित के जरिए पाक जर्मन ताल्लुकात का फरोग दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान बेहतर हम आहंगी का पेश खीमा साबित हो सकता है। पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त जिसे कहते हैं अक्कासी हो रही है, प्रोजेक्शन पाकिस्तान की। एक जर्मन खातून की सारी मुख्तलिफ ड्राइंग्स वगैरह जो हुई हैं उससे काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। और मैं पाकिस्तान एम्बेसडर का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये तकरीब यहाँ जर्मनी में बर्लिन में इसका मुनज़्ज़म तरीके से किया हुआ है। साबिक सफ़ीर पाकिस्तान शाहिद कमाल और उनके रुफ़का ने मुसव्विरा के इंतकाल के बाद इनका काम इकट्ठा किया और उसे एक किताब की शक्ल दी। तकरीब के दीगर शुरका में साबिक सफ़ीर शाहिद कमाल और सदर जर्मन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स परवेज़ अख्तर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सिफारत खाने और सफ़ीर का इस नुमाइश के निकात पर शुक्रिया अदा किया। तकरीब में मुमताज़ कम्युनिटी के नुमाइंदे और जर्मन के मकामी लोग भी शरीक थे। काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के नए हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आ गए। 2021 में अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दों की जानिब से खुदकुश हमला किया गया। खुदकुश धमाके में 170 से ज़ायद अफगान शहरी जाँ बहक और 13 अमरीकी एहलकार हलाक हुए थे। काबुल एयरपोर्ट पर हमला ISI और से वाबस्ता दहशतगर्द के जरिए किया गया था। ISI का दहशतगर्द अब्दुर्रहमान लुगारी अफगानिस्तान में ज़ेर हिरासत था, जिसे तालिबान ने अमरीकी इनखला के बाद रिहा कर दिया था। पुरखतर रास्ते, सहरा, साहिल समंदर, ऊंचे नीचे ट्रैक, एक बार फिर ड्राइवर्स चैलेंजेस का सामना करने को तैयार। 28 अप्रैल को हबरेली क्रॉस 2024 का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं बाबर नसीर की रिपोर्ट में।
खतरनाक रास्ते, धुआं उड़ाती गाड़ियां। हब रैली क्रॉस एक बार फिर होने को तैयार। 28 अप्रैल 2024 को ड्राइवर्स महारत दिखाएंगे। हब रैली क्रॉस की जानिब से तारीख का ऐलान कर दिया गया। 11वीं हब रैली है और इंशाअल्लाह ताला वो 28 तारीख को हम मुनक्किद कर रहे हैं और गडानी के एरिए में और गडानी के जजीरे पे जो 50 किलोमीटर की रेस है उसमें माशाल्लाह कोई 80-85 ड्राइवर्स आ रहे हैं, 4-5 ख़वातीन हैं और चीफ गेस्ट इंशाअल्लाह बलूचिस्तान वज़ीर आला है, गवर्नर है, सबको इन्वाइट किया है। 51 किलोमीटर लंबा और पुरखतरे ट्रैक किसी एडवेंचर से कम ना होगा। इंटरनेशनल ड्राइवर्स के साथ साथ मुल्की रेसर्स भी मुकाबले का हिस्सा होंगे। अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं, ड्राइवर्स जो हैं वो चला के एक्सपीरियंस उनको हो गया और माशाल्लाह अभी बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। हब रैली क्रॉस 10 कैटेगरीज पर मुश्तमिल होगी, जहां खवातीन रेसर्स और मोटरसाइकिल के लिए भी मौके होंगे। हब रैली क्रॉस के ऑर्गेनाइजर शुजात शेरवानी ने हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा किया कि रैली को सरकारी सतह का इवेंट करार दिया जाए। स्पोर्ट्स के शौकीन अफराद को मजीद बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।